Hello student of earth class. We are studying about the nationalism in India, the rise of nationalism in India. Some events and some processes and factors that happened in our country and led in the growth of nationalism among the Indian people. And among that all the events and all the incidents, some incidents and some events and some processes we have to study. And the table of our study, we have reached to 1905. In this video we will try to understand about the boycott and Swadeshi movement, second Surat split, Surat split 1907, and Indian Council Act, Indian Council Act 1909, Morley-Minto reforms, it is also known as Morley-Minto reforms, and Indian Muslim League, Indian Muslim League, First World War. Boycott and Swadeshi movement was started after the partition of Bengal. You know that Lord Curzon was the Governor General and Viceroy of India at that time. In 1905, when in 1905 Bengal partition on the basis of community, religion, and on the basis of Muslim and Hindu, he divided the Bengal into two parts. This was the main purpose, to divide the strength and power of Hindu and Muslim, the unity, to divide and to break the unity of Muslim and Hindu. In the opposition of the Bengal partition, people started to strike and started a movement to adopt, to use the daily domestic products which were made in our country, that was Swadeshi, and boycott everything that was made and services gave by British. Services or goods and manufactured products and any type of provided services from Indian to British was to be boycotted and accepted Swadeshi products. Swadeshi, it means made in our own country. This movement was started in 1905 when Bengal was divided by Lord Curzon. In Indian National Muslim League was founded into 1906, no problem. In 1907, Indian National Congress, INC, it means Indian National Congress, held a meeting in Surat in Gujarat. At that time, that was in Maharashtra, and Congress
कांग्रेस वॉज डिवाइडेड, कांग्रेस was divided on the basis of the purpose, ideological purpose, ideological way, okay, into moderate and radical, radical were extremist, नरम दल एंड गरम दल इनको कहा जाता है, गरम दल। ये नॉन वायलेंस थे, ये वायलेंट थे, ठीक है। ये हमारी घटना है 1907 की, जब कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हो रहा था, मीटिंग हो रही थी। तो इस बात को लेकर के कि लाला लाजपत राय और कुछ ऐसे उग्र व्यक्ति जो ये कह रहे थे कि आपके जो पुराने लोग हैं, जो हाथ जोड़ने की जो प्रथा है आपकी, ये सही नहीं है कांग्रेस की, हम इसके अगेंस्ट है। तो कांग्रेस में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, जो कि फर्दर फिर 1911 में ये फिर 1911 में ये आइडियोलॉजिकल विभाजन तो चलता रहता है। बंगाल का विभाजन फिर 1911 में रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। यहीं आप इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो ब्रिटिश प्लेड देयर कार्ड वेरी वेल, दे प्लीज द मॉडरेट बाय पासिंग इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1909। उन्होंने मॉडरेट को खुश करने के लिए 1909 में जो एक्ट लाया, जिसको मॉर्ले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भारत के और मिंटो वाइसराय थे, पास्ड दिस एक्ट, इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। और दिस पार्टिकुलर रिफॉर्म लेड ए राइज इन द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें इलेक्टेड मेंबर जो थे, इसने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। और दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ए सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम वोटर और दे वर टू इलेक्ट लीडर फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी। उसने इस चीज़ की वकालत किया कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरल रहेगा और मुस्लिम लोग अपने ही कम्युनिटी के लोगों को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं, नेता चुन सकते हैं। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट ए कम्युनल डिवाइड। एक्चुअली में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कम्युनल डिवाइड के पर्पज से भी लाया गया था। अब अगर हम देखें कि दो रिवोल्यूशनरी जो स्टार्ट ऑफ वायलेंट नेशनलिज्म जो फर्स्ट फेज आता है हमारे देश में, जिसमें हम कई लोगों का नाम ले सकते हैं। द फेल्योर ऑफ मॉडरेट एंड रेडिकल इन अचीविंग पॉलिटिकल गोल गेव ए राइज ऑफ न्यू काइंड ऑफ मेथड व्हिच बिलीव्ड इन द यूज ऑफ वायलेंस। और ये जो मॉडरेट या एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों का फेल्योर जो है, इसके आधार पर एक नई विचारधारा, एक नए लोग की हुआ है, जिनका एम था कि मतलब वायलेंस होकर के हम क्या करें, अपनी आज़ादी को ले लें। द एम्ड ए फिजिकली एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। इन्होंने सोचा कि हम फिजिकली मतलब देख करके, आमने सामने भिड़ करके और ताकत के साथ, युद्ध के साथ हम इनको क्या करें, बाहर उठा करके फेंक दें। और क्या हुआ कि इन्होंने कई ऑफिसर्स को मारा, कहीं लूटपाट किया, कई प्रकार की कांड किए, लूटा, मारा, ब्रिटिश को मारा, ब्रिटिश चीज़ों को नुकसान किया, डायरेक्टली भिड़ गए, ठीक है। अब उसमें जैसे अनुशीलन समिति इन बंगाल, अभिनव भारत सोसाइटी इन महाराष्ट्र, ये सब कुछ सीक्रेट सोसाइटियाँ थीं जो काम कर रही थीं। 1908 में खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की, 2 यंगर रिवोल्यूशनरी फ्रॉम बंगाल, mistakenly killed 2 British ladies at Muzaffarpur by throwing a bomb on the carriage which they believed was occupied by the Kingsford and popular English judge मुजफ्फरपुर। और क्या हुआ, बाद में उनको मतलब सबको क्या किया जाएगा, मार दिया गया, ठीक है। और भी कुछ आप उसमें BD सावरकर, अजीत सिंह, मैडम भिखजी खामा, श्यामा जी, कृष्ण वर्मन, ये सब क्या हुए, बाहर से और बाहर रह करके ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके से काम किया कि ब्रिटिश के अगेंस्ट इन्होंने काम किया, ठीक है।
आपको 1913 में गदर पार्टी का नाम एक बड़ा जिक्र होता है, जो कि अमेरिका और कनाडा में लाला लाला हरदयाल और गदर पार्टी, ये गदर पार्टी का गठन किया गया ये अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। और किसके द्वारा? लाला हरदयाल और प्लस इसमें और थे कि सोहन सिंह भाखना, ये इन्होंने गदर पार्टी किया, इन्होंने पत्रिकाएं किया और एक बहुत बकर वर द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द गदर पार्टी। अभी अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो ब्रिटिश हैड ऑलवेज वांटेड टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम में जो एकता रही थी, they always wanted to break it because by the unity of Hindu and Muslim they had to face a strong challenge from our side. They experimented it in the partition of Bengal by dividing both the communities. और इन्होंने बंगाल का विभाजन करके इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया। दिस पॉलिसी केम टू बी नोन एज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 बाय आगा खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क एंड नवाब ऑफ ढाका। और ढाका में, ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उस समय कांग्रेस थी तो मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग पार्टी का क्या क्या गठन किया आगा खान। और ढाका में वहाँ के जो नवाब ऑफ ढाका थे आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क। अगर आगा खान को अब याद रखते हैं तब भी काफ़ी है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग। बंगाल का पार्टीशन जो हुआ था करजन के द्वारा, इसको मुस्लिम लीग ने क्या किया? समर्थन दिया। सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट वाज द अपील बाय द लीग टू वायसराय लॉर्ड मिंटो। उसमें लॉर्ड मिंटो थे। अब यहीं पर आप आगे देखेंगे, आगे की जो हमारी कहानी शुरू होगी, एक जो नया दौर आता है महात्मा गांधी का जो दौर आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक ले चला है। इस पीरियड में भारत की कहानी कुछ अलग रहती है और इसके बाद की कहानी 1918 के बाद 1947 तक ले कहानी कुछ अलग दौर में गुजरती हुई चलती है, अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं। अब हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हमें देखने को मिलती हैं जो आज़ादी के नज़दीक थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट और टू फाइट दिस वार द ब्रिटिश यूज्ड इंडियन रिसोर्सेज एंड सोल्जर्स। 1914 के वार में ब्रिटिश ने क्या किया कि जो इंडियन रिसोर्सेज है और इंडियन सोल्जर्स हैं, इनको क्या किया? इन्होंने यूज किया। और इंडियन लीडर्स hoped that if they continued support to British in the war, they demanded would be granted when the war came to be end. हमें लगा कि अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश का मदद करेंगे तो युद्ध खत्म होने के बाद, इवन आप देखेंगे अभी पिछले अगले फेज में हम लोग देखेंगे जब गांधी जी का आगमन होता है 1915 में, जब गांधी जी आते हैं तो उन्होंने भी ये चीज़ विश्वास किया कि अगर हम ब्रिटेन का मदद करते हैं तो ब्रिटेन हमारी क्या करेगा? अगर हम ब्रिटेन की मदद करेंगे, हमारे सैनिक अगर ब्रिटेन का मदद करेंगे, हमारे रिसोर्सेज अगर ब्रिटिश वार फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर यूज किए जाएंगे, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होगा रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है। तो हमें हमारी जो डिमांड है, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ग्रांट की जाएंगी, बट वो इत्तेफाक से होती नहीं है। उसके बदले में हमें बहुत ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनको हमें ज़रूरत नहीं थी। रॉलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, तमाम चीज़ें घटनाएं घटित होंगी आगे चल करके। हाँ, होम रूल लीग और होम रूल की डिमांड जो है वो हमारे देश में क्या हो रही थी, शुरू हुई थी। तिलक और एनी बेसेंट ने 2 होम रूल लीग का गठन किया, मतलब स्वशासन। होम रूल मतलब हमारा खुद का शासन, ठीक है। इस तरीके से एक आप देखने को पाए होंगे कि किस तरीके से 1857 की क्रांति के बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी कुछ संस्थाएं काम कर रही थी और फिर कांग्रेस एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और एक कॉमन एनिमी की समझ कि हमारा कॉमन एनिमी कौन है, इसकी समझ को डेवलप करने की हमेशा काम कर रही थी। तो ऐसे धीरे धीरे 1915 तक आते आते आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों के अंदर और उनकी ब्रिटिश की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं जो लिए गए भारत के लिए, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे। तो हमारे अंदर उनके अगेंस्ट एक जो फीलिंग जगती है, हमें एक करती है, वो राष्ट्रवाद हमें देखने को मिलता है। और राष्ट्रवाद के नए फेज में इंडियन struggle for freedom we will try to understand in next videos. Okay, thank you.